माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, लड़ेंगे लड़ेंगे। આપણે સૌ જેમની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આપણા સૌના લાડીલા આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, પંજાબના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભગવંત માનજી, ગુજરાતના ચૂંટણી પ્રભારી અને દિલ્હીના જનનાયક શ્રી ગુલાબજી, રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ શ્રી ઇન્દ્રનીલજી, ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ આપણા સૌના લાડીલા ગોપાલજી, પાર્ટીના ખજાનચી કૈલાસદાનજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. જોરદાર તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરીએ. તમે સૌ જણાવો, આ દેશમાં કેટલાય રાજ્ય છે, કેટલાય મુખ્યમંત્રી છે, પણ સૌથી વધારે ઇતિહાસમાં ને આજે જો કોઈ મુખ્યમંત્રીનું નામ લેવાયું હોય તો એ કોણ? केजरीवाल। सर इलेक्शन तो बहुत आए और गए, हर बार नेता जिनको चुनाव लड़ना था वो और पार्टियां ही डेस्परेट होती थी। पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस इलेक्शन के लिए जनता डेस्परेट है कि कब इलेक्शन आए और हम बटन दबाएं। गुजरातनी अस्मिताने बचाववा माटे आपणे सौ, तमे जे 2 કલાકથી અહીંયા તપ કર્યું છે, મને સાંભળ્યો છે અને જેમના આપણે આજે અહીંયા આશીર્વાદ લેવાના છે તે સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. હું સૌથી પહેલા વિનંતી કરીશ આપણા લાડીલા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને કે આપણું માર્ગદર્શન કરે. શ્રી ગોપાલભાઈ. આપણે બધાએ એક વખત જોરદાર જયઘોષ કરીએ, 2 હાથ ઊંચા કરીને. ભારત માતા કી. આજના આ સંવાદ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત આપ તમામ ગુજરાતના મહેનતુ, ઈમાનદાર, દમદાર, કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ અને કરાર આધારિત કર્મચારીઓનું હું આજના આ કાર્યક્રમની અંદર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપણી વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અને દિલ્હી સરકારના મુખ્યમંત્રી માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી તેમજ પંજાબ સરકારના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી સરદાર ભગવંત માન સાહેબ ઉપસ્થિત છે. હું એમનું ગુજરાતની પવિત્ર ધરતી ઉપર સ્વાગત કરું છું. સાથીઓ, ગુજરાતમાં આપણે બધાએ, આપણા પરિવારે, આપણા સગાવાલાઓએ, આપણા સમાજે, આપણા મહોલ્લાવાળાએ બધાએ ભેગા મળીને વર્ષો સુધી ભાજપને મત આપ્યો. પરંતુ આજે દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે ગુજરાતના હજારો ચાલુ કર્મચારીઓ, પૂર્વ કર્મચારીઓ, કરાર આધારિત કર્મચારીઓ બધાએ આંદોલન કરે છે, પણ જેને વર્ષો સુધી મત આપ્યો એ ભાજપ પાર્ટી આપણી વાત સાંભળવા માટે તૈયાર પણ નથી કે એને આપણી વાત સાંભળવાની પડી નથી. એવા સમયે છેક દિલ્હી અને પંજાબથી મુખ્યમંત્રી આપણી વાત સાંભળવા આવ્યા છે. જે લોકોને આટલા વર્ષ સુધી મત આપ્યા, અહીંથી જ અડધો કલાકના રસ્તા ઉપર સીએમ હાઉસ છે ગાંધીનગરમાં. જેને વર્ષો સુધી મત આપ્યા એ સીએમ ને ટાઈમ નથી. આપણા અહોભાગ્ય કહેવાય, આપણું સૌભાગ્ય કહેવાય કે એક નહીં બે મુખ્યમંત્રી આપણી વાત સાંભળવા માટે આજે હાજર છે. અહીંયા તો મંત્રી આપણી વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. મંત્રી છોડો, એક શહેરનો ભાજપના નાનો મોટો હોદ્દો ધરાવતો હોદ્દેદાર આપણી વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. માત્ર નવા જભા પહેરાવી અને ધૂળ ન પડે એનું ધ્યાન રાખીને ફરવા સિવાય કોઈ ધંધો નથી એમનો. એવા સમયે વિચાર કરો, કેમ કે ચૂંટણી છે, ભાજપ વાળા એમ કે છે કે ચૂંટણી છે એટલે આ બધા આવ્યા છે. તો ચૂંટણી શું કાંઈ અમારા એકલા માટે આવી છે? ભાજપ વાળાને ચૂંટણી નથી? ચૂંટણી ભાજપ વાળા માટે પણ છે, કોંગ્રેસ વાળા માટે પણ છે, આમ આદમી પાર્ટી માટે પણ ચૂંટણી છે. પણ કોંગ્રેસ, ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટીમાં ફરક એટલો છે
કે ભાજપ અને કોંગ્રેસે માત્ર તમારા મત જોતા છે, અમારે પહેલા તમારી વાત સાંભળવી છે, દિલ જીતવું છે અને પછી ચૂંટણી જીતવી છે આમ આદમી પાર્ટીએ. અને એટલા માટે દિલ જીતવા માટે આ સંવાદ કાર્યક્રમ છે. વિચાર કરો કે એક સીએમ ઓફિસની અંદર માત્ર કોઈ યુનિયનના 4 પ્રતિનિધિને પણ મળવા જઈ શકાતું નથી. સીએમને એના રૂમની અંદર શું વાત થાય છે, શું નથી થતી, કેવો જવાબ આપે છે, કોઈ નથી જાણી શકતું. અને સીએમ ના કે હોમ મિનિસ્ટરના ચેમ્બરમાં જેને લઈ જાય એની ઉપર કંઈક જાદુ ટોણા કરવામાં આવે એટલે બહાર આવીને એમ કહી દે કે બધું ફિનિશ થઈ ગયું, બસ હવે બધા ધંધે લાગી જાઓ. અંદર જાદુ થાય. જે વ્યક્તિને અંદર લઈ જવામાં આવે રૂમમાં જાદુ થાય, એની ઉપર શું ચડી ફેરવે છે કે શું એની ઉપર દાણા નાખે છે, બહાર આવે એટલે માણસ બદલાઈ જાય. શિક્ષકોના સંઘમાં એવું થયું, કર્મચારીઓના સંઘમાં એવું થયું, બિન સચિવાલય આ તે જે કઈ વખતે એવું થયું, જે લોકો મુખ્યમંત્રી કે મંત્રીની ચેમ્બરમાં ગયા એ બહાર આવ્યા એટલે નવા સ્વરૂપમાં બહાર આવ્યા. આપણું સૌભાગ્ય જોવો કે બંધ રૂમમાં નહીં, લાખો લોકોની હાજરીમાં મુખ્યમંત્રી તમારી યારે વાત કરવાના છે. આજે મીડિયાની હાજરીમાં, લોકોની હાજરીમાં જગ જાહેર. આવી હિંમત ક્યાંથી આવે જગ જાહેર વાત કરવાની? હિંમત આવે અંદરથી. જ્યારે માણસ ઈમાનદાર હોય ને ત્યારે લાખો લોકોની હાજરીમાં વાત કરી શકે. અને જે બેઈમાન હોય એ એમ કે 3 જ જણા આવજો અંદર, જેથી કરીને હરખો જાદુ કરીએ કઈ વ્યવસ્થિત. બધાય જો કર્મચારી એક સાથે વાત કરવા જાય તો જાદુ ન થાય, એટલે ઉપરના 3 લોકોની મુંડી કાપી નાખે. આજે આપણું ગર્વ લઈ શકીએ કે જગ જાહેર, તમે બધા મને ખોખારો ખાઈને કહો કે જગ જાહેર લાખો લોકોની હાજરીમાં તમારી વાત જો સીએમ સાંભળે તો એ સારી બાબત કહેવાય કે ન કહેવાય? આ હિંમત ઈમાનદારીમાંથી આવે, નિયતમાંથી આ હિંમત આવે. કંઈક કરવા માટેની જેની દાનત હોય એ જ માણસ ખુલ્લે આમ વાત કરી શકે, બાકી ચોર હોય ને એક ચેમ્બરોમાં વાતો કરે. અને એટલા માટે आज सर यहाँ पे जो भी इस प्रोग्राम में उपस्थित है मैं उनकी लिस्ट आपको बता देता हूं. यहाँ पे मनरेगा के कर्मचारी, समग्र शिक्षा, नेशनल हेल्थ मिशन, फॉरेस्ट विभाग, गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स GISFS के जवान, वास्मो प्रोजेक्ट, 108 इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी, खेतीबाड़ी के कर्मचारी, सिंचाई पशुपालन कर्मचारी यूनियन, जन सेवा केंद्रों पे बैठ रहे कर्मचारी गण, ग्राम विकास एजेंसी, सफाई कामदार, ड्राइवर, चौकीदार, पियून, लिफ्टमैन, GRD जवान, होमगार्ड जवान, वायरमैन, टीबी हेल्थ विभाग के कर्मचारी, गतिशील हेल्थ विभाग के कर्मचारी, संयुक्त खेती के कर्मचारी और अन्य कई शाखाओं के आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे सारे कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि सर यहाँ पे मौजूद है. હું આપ તમામનું સ્વાગત કરું છું. સાહેબ સુધી, કેમ કે તમે પેમ્પલેટમાં ગુજરાતીમાં લખીને લાવ્યા છો એટલે મેં હિન્દીમાં સાહેબને કીધું છે, બાકીની જાણ હું કરી દઈશ. દોસ્તો, આપણે સમજવું પડશે કે આઝાદીના 75 વર્ષ થઈ ગયા. આઝાદીનું અમૃત, આખા દેશની અંદર આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ચાલે છે. આઝાદ દેશ થયો, આઝાદીનું અમૃત આવ્યું, એ અમૃત ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ પી ગયા અને આપણને બેરોજગારીનું ઝેર પાવામાં આવ્યું છે, મોંઘવારીનું ઝેર પાવામાં આવ્યું છે. આઝાદીનું અમૃત પણ આપણા માટે ક્યાં? આપણને તો કોઈ અમૃત મળ્યું નથી, કેમ કે આપણને તો નોકરી કે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર મળેલી છે. આજે સવારે નોકરીએ પર જઈએ ને બપોરે 2 વાગ્યે ઠેકેદાર ફોન કરીને કહી દે કે બપોર પછી ન આવતા, તો આપણું તો જીવન ઝેર જેવું થઈ જાય છે. આવું કેમ થયું? શા માટે આપણે કોન્ટ્રાક્ટ કે આઉટસોર્સની નોકરી કરવા માટે લાચાર બન્યા? એનું એક જ ઉદાહરણ છે કે બાબા સાહેબે બંધારણની અંદર એમ લખ્યું હતું કે સરકાર 5 વર્ષ પૂરતી કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર રહેશે અને નોકરી કાયમી રહેશે, પરમેનન્ટ રહેશે નોકરી. આપણે ઊંધું કર્યું, સરકાર ભાજપની કાયમી કરી નાખી, એ જ સરકારે આપણી નોકરી કોન્ટ્રાક્ટ વાળી કરી નાખી. એ આપણી ભૂલ છે. આપણે કરેલું જે કાંઈ છે એને સુધારવું પડશે. બાબા સાહેબે જે આદેશ આપ્યો, ભારતના બંધારણે આપણને જે કહ્યું એ આપણે ન કર્યું. વારંવાર કમળ દબાવ્યું તો કીચડ થઈ ગયું ગાંધીનગરની અંદર. અને એ કીચડ પાર્ટીએ નિર્ણય કર્યો કે જનતા જો અમારી સરકાર કાયમી કરી નાખતી હોય તો અમારી સરકાર તમારી નોકરીઓ કોન્ટ્રાક્ટ વાળી કરી નાખશે. અને એટલા માટે આપણે નિર્ણય કરવાનો છે કે જો નોકરી કાયમી જોઈએ તો સરકાર 5 વર્ષના કોન્ટ્રાક્ટ વાળી લાવો.
કોઈને બીજો ચાન્સ ન મળવો જોઈએ. કેમ કે એક સાધારણ સરકારી નોકરીનો સમયગાળો અંદાજે 30 વર્ષનો હોય. 30 વર્ષ કોઈ માણસ સરકારી નોકરી કરે, કેમ કે માંડ તમે 22, 25, 27, 28 વર્ષે નોકરી પર લાગો. 30 વર્ષ નોકરી કરો એટલે રિટાયરમેન્ટની એજ આવી જાય, ઉંમર આવી જાય રિટાયર થવાની. તમે વિચાર કરો કે એક સરકારી નોકરી, કાયમી નોકરી શું કામ કહેવાય? કેમ કે સળંગ 30 વર્ષ આપણે નોકરી કરી શકીએ. સરકારી નોકરી જેટલી સત્તા ભાજપને આપવામાં આવી, 30 વર્ષથી ભાજપ અત્યારે સરકારી નોકરીની જેમ પોતાની સરકાર ચલાવે છે. અને એટલા માટે આપણે 11 મહિનાની કરાર આધારિત નોકરી કરવી પડે છે. બધાને વિનંતી છે કે જે કીચડ ગાંધીનગરની વિધાનસભામાં સચિવાલયમાં ફેલાયું છે ભ્રષ્ટાચારનું, ભાજપનું, એ કીચડને સાફ કરવા માટે અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવંત માન સાહેબ ઝાડુ લઈને આવ્યા છે. આપણે બધા આ વખતે ઝાડુ મારવાનું છે. અને જો ઝાડુ મારીને આ ગંદકી સાફ કરીશું તો નોકરી પણ મળશે, શિક્ષણ પણ મળશે, સારી સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થાઓ પણ મળશે. બંધારણની અંદર જે કાંઈ અધિકારો લખ્યા છે અધિકારો પણ આપણને મળશે. એટલે આપ તમામનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. આજે તમે મોટી સંખ્યામાં અહીંયા પધાર્યા છો. મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતની અંદર જે ક્રાંતિ આવી રહી છે ને એનું એંધાણ તમારા જુસ્સાની અંદર દેખાઈ રહ્યું છે. દોસ્તો, આપ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ ગોપાલભાઈ. ગોપાલભાઈની બધી વાત વાસ્તવિક હતી, સાચી લાગી તો આ વખતે ઝાડુ, ઓનલી ઝાડુ, નો કમલ લડેંગે. સાહેબ, જનરલી બહુ ઓછું સૌભાગ્ય મળે કે બબ્બે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય. पंजाब में तो अभी अभी सरकार बनी है, बिजली फ्री का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, लोगों का जीरो बिल आना शुरू हो गया है. 75 मोहल्ला क्लिनिक का काम शुरू हो गया है. ये पार्टी पे लोग इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि ये ही है जो बोलते हैं वो करते हैं. और इसीलिए लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए पहली बार कोई राजनेता ने गारंटी शब्द यूज करने की हिम्मत की है. वो है ओनली एंड ओनली अरविंद केजरीवाल. जिन लोगों ने कर दिखाया है, पंजाब की धरती से हमारे पास जो आए हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी का प्रोग्राम है. पंजाब की गवर्नमेंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे उनको रेगुलराइज कर दिया है. भगवंत मान जी के लिए एक जबरदस्त तालियां. मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आदरणीय भगवंत मान जी, हम सबको, आम आदमी पार्टी के सभी सोल्जर्स को आप मोटिवेट करें. बहुत बहुत धन्यवाद. मंच पर आसीन नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी, जिन्होंने देश की राजनीति को बदलने के लिए पहला कदम आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए उठाया, काफिला बढ़ता गया. आज उनका नाम दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बीच लिया जाता है. श्री अरविंद केजरीवाल जी मंच पर आम आदमी पार्टी के गुजरात के सभी पदाधिकारीगण, सभी ओहदेदार, गुजरात का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, जितने मंच को आप रिप्रेजेंट करते हो, और आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी मेरे सामने बैठे हुए सभी जो कर्मचारी, जो इस उम्मीद को लेके आए हैं कि हमारी नौकरी पक्की होगी, हम बेफिक्र हो जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे, ये उम्मीद लेके आप आए हैं.
आपका यहां पर आना हमारे लिए सौभाग्य है। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे से पहले गोपाल भाई बोल रहे थे, मैं काफी गुजराती समझ लेता हूं और उनका भी यही कहना था कि मुख्यमंत्री से मिलने की बात तो दूर, मंत्री और एमएलए और म्यूनिसिपल काउंसलर भी हमको नहीं मिलते और सरकारें बना के वोट लेके हमारा चले जाते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मुझे एक बड़ी हैरानीजनक बात पता चली। जो प्रोटोकॉल है उसमें पुलिस खड़ी थी, कुछ पुलिस नहीं थी, हाथ में डंडे थे, लेकिन वो सिविल वर्दी में थे। मुझे बताया गया कि जो सिविल वाले हैं वो पक्के हैं, जो वर्दी वाले हैं वो कच्चे हैं। मैंने कहा यार अजीब उल्टी बात है ये है? हाँ, ने कहा जिनको आपने पक्के रखा वर्दी उनको पहनाओ, अभी जिनको जो कच्चे हैं कम से कम उनको मनमर्जी के कपड़े तो पहनने दो। यही बीमारी पंजाब में भी थी, वही यहां गुजरात में है। ठेकेदार नेताओं के बहुत करीब होते हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। कागजों में वेतन 20,000 है, मिलता 5,000 है। यही बात है ना? ये पंजाब में भी था, ये पंजाब में भी था। हम 36,000 पंजाब में कच्चे मुलाजिम हैं। हम धीरे धीरे आउटसोर्सिंग बंद कर रहे हैं। टीचर डे वाले दिन 5 सितंबर को हमने 8400 से ज्यादा कच्चे टीचरों को सरकारी नौकरी पक्की दी हमने। अगर हमारा टीचर, जिसको नेशन बिल्डर बोलते हैं, कौम का निर्माता बोलते हैं, अगर वही निश्चिंत नहीं है, उसको अपने फ्यूचर की चिंता है, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएगा जी? हमारे यहां भी धरने, आंदोलन, पानी की टंकी पर चढ़ना आम बात थी। हमें 6 महीने हुए हैं, धीरे धीरे काम हो रहे हैं और लोगों को यकीन हो गया कि काम हो रहे हैं और काम पारदर्शिता से हो रहे हैं। 20,000 नौकरियां दी हैं। एक कोई आदमी खड़ा होकर कह दे मेरे से 1 रुपया मांगा गया इस नौकरी के लिए, तो हम जिम्मेदार हैं। इसलिए लोगों का विश्वास बन गया कि आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको ये निर्देश दिए हुए हैं, 5 काम बोलो और 6 कर दो तो लोग शाबाशी देंगे। 5 बोलकर 6 कर दिए। अगर 5 काम बोल के 4 करोगे तो लोग कहेंगे नहीं, इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसलिए बोलो ही उतना जितना कर सकते हो। आपको रखा हुआ ठेके पर, आपको रखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। उसमें क्लॉज है, चलो जी आप घर पे जाओ। लेकिन आप पर मैं हैरान हूं, है बंगाल के, अपना गुजरात के लोगों पर, कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ये कभी भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट आपने 27 साल से बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आप उनको, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दो ना इस बार, उनको भी बेरोजगार करो, थोड़ा पता चले कि बेरोजगारी क्या होती है।
उनके सर पे भी तलवार लटके तो उनको पता चले कि दर्द क्या होता है। वो तो 27 साल से बैठे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उधर वाले इधर, इधर वाले उधर, यही चल रहा है। वो इलेक्शन का समय था, किसी पार्टी के दफ्तर में आग लग गई, पार्टी के दफ्तर से फोन गया फायर ब्रिगेड को कि जल्दी पहुंचिए जी, हमारे दफ्तर में आग लग गई, ये विरोधियों की चाल है, हमारे जहां पूरा प्रचार की सामग्री, पोस्टर, झंडे यहीं पड़े हैं, सर हम इलेक्शन हार जाएंगे अगर ये आग आप पर काबू ना पाया गया। 5 मिनट के बाद उसी फायर ब्रिगेड में फिर फोन गया उसी आदमी का, कहते जी आने की जरूरत नहीं है, कोई आग बुझाऊ गाड़ी आने की यहां लाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कहता आग पर काबू नहीं पा लिया, मैंने ही पार्टी बदल ली है, अब वो विरोधी पार्टी का दफ्तर है, जलने दो। ये होता रहा है आपके साथ, कभी इधर कभी उधर। अगर ये ऐसा कर सकते हैं नेता लोग, कभी उधर बदल गए कभी इधर बदल गए, तो तुम एक जगह पे क्यों खड़े हो? तुम भी इस बार झाड़ू उठा लो, बदल लो। मैं तो ये कहता हूं, मैंने ये पार्लियामेंट में बोला था कि जो ओथ है, जो मंत्री बनते समय, मुख्यमंत्री बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय जो शपथ ली जाती है, अंग्रेजों ने लिखी हुई है, उसको भी बदलना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं? मैं भगवान की, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं फला फला मंत्रालय संभालने जा रहा हूं, मैं सभी भेद गुप्त रखूंगा। अरे व्हाट्सएप के जमाने में गुप्त क्यों रखोगे भाई? ये ओथ होनी चाहिए, मैं तो सब कुछ बताऊंगा, पब्लिक के सामने लाऊंगा, पारदर्शिता से काम करूंगा। उसी गुप्त भेद में तो सब कुछ है। तो आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की पार्टी है। जब भी टीवी पर आधे आधे घंटे के आम आदमी पार्टी के खिलाफ डिबेट चलती हो ना, जिसमें आम आदमी पार्टी को गालियां दी जा रही हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये फलां हैं, धिमका हैं, तो समझ लो देश के किसी ना किसी हिस्से में हम जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, तलवार लटकाई हुई आपकी नौकरी पर, जब भी निकाल दें, कोई पता नहीं कब निकाल दें, कोई उसमें आपको सुविधाएं नहीं मिलती, तो फिर 75वें आजादी दिवस पर हम लाल किला से कैसे बोलने की हिम्मत कर सकते हैं कि देश को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, जब हमारे युवाओं को और हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हीं को हम भी पक्का नहीं कर पाए अभी तक। 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह जी को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी। भगत सिंह जी को एक चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और चिंता उनका डर सही साबित हो गया। अंग्रेजों ने उतना नहीं लूटा 200 साल में। अंग्रेज अभी आजकल शर्मिंदा होते होंगे कि हम 200 साल में उतनी लूट नहीं कर पाए जितने ये आप अपने मुल्क की खुद ही 2 साल में कर लेते हैं। कोई बैंक लूट के भाग गया, कोई देश की प्रॉपर्टी बाहर ले गया, किसी का लोन माफ कर दिया, गरीबों पर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ये थोप दी। तो ये तो आजादी भगत सिंह के सपनों की आजादी नहीं है। अगर वो आजादी जो भगत सिंह के सपनों की थी वो हमारे घरों तक पहुंच गई होती तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ के बड़े अफसर बनने लगते, तो कचहरी में, कोर्ट में रिश्वत ना चलती, थाने में गरीब की सुनवाई होती, अगर वो आजादी हमारे पास आई होती। लेकिन ये आजादी
महलों में और इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। यही याद हुए, हम थोड़ी है। मैं तो जब से होश संभाला है, मैं सुबह सुबह 15 अगस्त को वो देखता हूं जो लाल किला पे फंक्शन होता है। जब से होश संभाला है वही भाषण, अफसरों का लिखा हुआ भाषण, बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई और गरीबी पर और ज्यादा चिंता व्यक्त। कहते नमस्कार, ये था 15 अगस्त। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे देश के वारिसों, मेरे देश को चलाने वालों, अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम लाल किले वाला भाषण तो बदल लो। अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे, लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। वो सिर्फ भाषण चला। और हमें कह रहे हैं अगर अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में इलाज फ्री कर देते हैं, बड़े से बड़े ऑपरेशन फ्री कर देते हैं, बिजली का बिल 0 आता है, महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर देते हैं, गुजरात में 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, पंजाब में बिजली मुफ्त, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, तब ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। कहते हैं ना भाई, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों पर लगाने को आप फ्री की रेवड़ी क्यों कहते हो? जो कनाडा, अमेरिका और डेवलप कंट्री हैं वो भी देते हैं अपने नागरिकों को पैसे, वहां इसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। अच्छा, बिजली पैसे बचा के जो पुल बनना था 350 करोड़ में, उसको 200 करोड़ में बना के नई टेक्निक से 150 करोड़ बचा के लोगों की बिजली फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। ये फ्री की रेवड़ी थोड़ी है। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो मोदी साहब मुझे ये बता दीजिए, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आने वाला पापड़ किसने बेचा था? मुझे पता चला है कि गुजरात में 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आ गया ना? अरे गोपाल भाई, तो आप तो कह रहे थे आ गया है, हमारा भी नहीं आया। इनके 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घरों में 2-2, 3-3 हजार बचत करके रखा हुआ था नोटबंदी करके, वो भी ले गए। ये इनकी हालत है। बैंक बेच दिए, जहाज बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, कुछ नहीं रेलवे स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेचा है, सिर्फ एक चीज खरीदी है, मीडिया। ज्यादातर मीडिया, मैं आपको हाथ जोड़ कर बेनती करता हूं, 7 बजे के बाद जो टीवी चैनल पर डिबेट आती है, या तो कोई टैबलेट ले लिया करो ताकि बीपी ना बढ़े, वरना ना ही सुनो। क्या उसमें कभी कोई नौकरी की बात होती है? कभी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की बात होती है? कोई सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा की बात होती है? नहीं, बस सिर्फ धर्म की बात होती है, ये हो ये हो ये हो। वो हमारा मुद्दा नहीं है। जब से होश संभाला है, एक आदमी देखा है मैंने जिसने ये कहने की हिम्मत कर दी इलेक्शन से सिर्फ 1.5 महीना पहले इलेक्शन से उस आदमी ने हिम्मत की उसको वो बात कहने की जिसके लिए जिगरा चाहिए। वो था अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा दिल्ली की इलेक्शन से पहले कि अगर मेरे 5 साल के पुराने काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना नहीं देना।
5 साल का रिकॉर्ड, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, उसके आधार पे आगे वोट मांग रहे हैं। अभी एयरपोर्ट पे उतरे, पत्रकारों ने कहा जी बीजेपी कह रही है कि योगी जी ने 100 दिन में ये काम कर दिए, तो फिर इनके 27 साल कहां गए? इनके 27 साल कहां गए अगर योगी के गिनाने पड़ रहे हैं? कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ बातें। आजकल क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, अभी जुमला फैक्ट्रियों में नए नए जुमले बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं नए नए जुमले कि कौन से जुमले से लोगों की भावनाएं भड़केंगी, कौन से जुमले से लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, कौन से जुमले से एक दूसरे से इनको अलग किया जाएगा, कौन से जुमले से लोग नफरत फैलेगी। ये जुमले बन रहे हैं अभी पार्लियामेंट, उसमें इनकी फैक्ट्रियों में। सो इनके जुमलों से बचना, हम तो पंजाब में 6 महीने हुए हैं अभी, 6 महीने में हमने वो काम किए हैं जो इन्होंने 70 साल में नहीं किए। 6 महीने में हमने वो काम किए जो सरकारें जाती जाती आखिरी साल में करती हैं कि अब थोड़ी नौकरी दे दो। अभी हमें युवाओं के संवाद सम्मेलन से आ रहे हैं, वहां भी लोगों ने यही कहा कि जब इलेक्शन आती है तब नौकरियां निकलती हैं। नौकरी का इख्तियार तब निकलता है जब इलेक्शन आती है। वो वाली बात है ना, जंगल में जानवरों ने चुनाव कराने का फैसला किया कि डेमोक्रेसी लेके आएंगे जंगल में, भारत की तरह डेमोक्रेसी। शेर अपने आप राजा बन जाता है, इसको कौन बनाता है भाई? शेर भी इलेक्शन लड़ ले, अगर ये जीत गया ये बन जाएगा। तो जंगल में माहौल क्या था, इस कविता में छोटी सी सुनाने वाला हूं, उसमें कहीं भी देश का नाम नहीं है हमारे, लेकिन जो सुनता है वो देश में ही रहता है, वो सोचता ही ये है कि हाँ ये यहां भी यही होता है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल आज हैरान पड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा बहन जी शर्मिंदा मत करो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे। अपने मेमनों को समझा देना कि अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा। उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, वो उठा के ले जाती है ना उनको अपने पंजे में। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को भरोसा दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। अब पूरा इलेक्शन कैंपेन करके दिन में शेर अपने घर जाता है, कहता मेरी पत्नी शेरनी सारा जंगल घेरनी, क्या कर रही है शेरनी? तो शेरनी ने कहा शेर जी पतिदेव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। तो शेर ने कहा रे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद। ऐसा करते हैं ये हमारे साथ, ऐसे वादे करते हैं, उनके साथ भी वादे कर लेते हैं, हमारे साथ भी वादे कर लेते हैं, और इलेक्शन के बाद ये खरगोश की तरह हमें खाते हैं। फिर 5 साल, तो 5 साल मतदान, मतदान का मतलब है अपने मत का दान, अपनी अकल का दान, कि मेरी अकल के मुताबिक ये आदमी आना चाहिए। मतदान, आपने मतदान करना है, और उस मतदान से 5 साल
आपके परिवार का फ्यूचर जुड़ता है। भविष्य कैसे आदमियों को लाए हो, वो आपका मत जो है वो बताएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में और पंजाब में बहुत लालच दिए, दिल्ली में भी पंजाब में भी इनके पास बहुत पैसा है, हजारों की मतलब गाड़ियां भर भर लालच देते हैं, लेकिन लोग लालच में नहीं आए। उन्होंने भरोसा किया अरविंद केजरीवाल जी पर, उन्होंने भरोसा किया आम आदमी पार्टी पर, और आज इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, सबसे तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी 8 साल हुए हैं, 8 साल बने हुए हैं, 2 राज्यों में हमारी गवर्नमेंट है, 7 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, और बहुत से काउंसलर। अभी हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपना जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया था, बहुत ज्यादा लोग। और ये वो पार्टी है जो आम लोगों को मौका देती है, ये वो पार्टी है जिसमें हर कोई आ सकता है, काम करे, आगे बढ़ सकता है। किसी का कोटा नहीं है हमारे यहां कि इस नेता का भतीजा है, ये इसका बेटा है। नो नो, ये नहीं है। काम करोगे तो विधानसभा जाओगे, काम करोगे तो लोकसभा राज्यसभा जाओगे, काम देश के लिए। तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किए हैं उसके बारे में अरविंद जी डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां से मैं आता हूं पंजाब की धरती से, हमने फैसला किया है कि एक एक आदमी को हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालकर सरकार का हिस्सा बनाएंगे, अपने पंजाब के परिवार का हिस्सा बनाएंगे, सरकार के परिवार का हिस्सा बनाएंगे, और बना भी रहे हैं, हर रोज बना रहे हैं। और हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, हर बार जितनी बार जीतते जाओगे उतनी बार पेंशन मिलती थी, वो बंद कर दी। उसी से जो पैसा बचेगा वो बेरोजगारों को नौकरी देने पर लगाएंगे। कहते हैं ना कि पैसा कहां से आएगा, ऐसे आता पैसा। और वैसे भी हमारे तो नेशनल कन्वीनर जो हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, IRS हैं, इनको तो सब पता है कि पैसा कहां से लाना है, कहां लगाना है, कैसे बचाना है। अब इनकम टैक्स वालों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो ये दिल्ली में हमने सफलतापूर्वक करके दिखा दिया। कांग्रेस वैसे तो मतलब क्या हालत हो गई है कांग्रेस की कि जिसको भी कहो कांग्रेस का प्रधान बनना है, कहता नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, भाग रहे हैं। न सबसे कहते जी पुरानी पार्टी 1885 में बनी थी, 2 टर्म से 2015 में और 2020 में देश की राजधानी में, देश की सबसे पुरानी पार्टी 2 बार हो गए। कितने MLA हैं? 0। जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह जी, बीजेपी के सारे मंत्री रहते हैं, वहां का MLA पता कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा है वो, नई दिल्ली विधानसभा है। इसका मतलब इन नेताओं के घर में जो काम करते हैं, रसोई में या माली, सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो इनको नजदीक से देखते रहते हैं कि इनकी नीयत क्या है। तो ये बदलाव तो आना था। अब गुजरात में बदलाव आएगा। जो झाड़ू है उससे, झाड़ू से हम, इससे पहले झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे आंधी रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते बीजेपी की दिल्ली में रोक दी,
पंजाब में रोक दी, 2 बार दिल्ली में हो गया, अभी पंजाब में आ गए आप, तो कैसे आंधी रोकी है? मैंने कहा जी सिंपल है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? वो बोले कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा लोगों ने झाड़ू से कीचड़ साफ कर दिया, कमल उगा ही नहीं। आप लोग भी झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो, बाद में कांग्रेस की तरह बीजेपी भी गुजरात में एक एमएलए ढूंढती रह जाएगी कि एक एमएलए तो हो जाएगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। 27 साल से परख रहे हो। सियाने कहते हैं एक बार परखे को दोबारा नहीं परखते। पहले आपके पास ऑप्शन नहीं थी, कोई आपके पास रास्ता नहीं था। पहले से दुखी होके दूसरे की तरफ जाने की सोच रहे थे, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस की हालत तो 90 साल उस बुजुर्ग की तरह होगी जिसको डॉक्टर भी बोल देता है कि इसको घर ले जाके इसकी सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है अब। तो ये आपस में मिले हुए हैं। एमएलए खरीदने की नई रीत शुरू कर दी है। अगर हमारा नहीं जीता तो उनका खरीद लो। दिल्ली में कोशिश की, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अभी पंजाब में कोशिश की, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और हैरानी की बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि नहीं 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 नहीं, विधानसभा सेशन बुलाकर विश्वास मत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के तो 2-3 स्टेटों में सरकार तोड़ दी। हर रोज उनके एमएलए ले जाते हैं, या तो फिर आपस में भाई खाते इकट्ठे हैं इनके। वो होता ना, किसी घर पे इतनी गरीबी आ जाती है कि बर्तन बेच के गुजारा करना पड़ता है। शायद कांग्रेस का भी यही हाल होगा कि एमएलए बेच बेच कर गुजारा करना पड़ रहा है। यही हो गया होगा, और क्या होगा। एमएलए मतलब हमारा मत, हमारा वोट। इसलिए जब वोट डालने जाओगे इस बात का ध्यान रखना कि ये वोट, ये बटन जो है ना, बटन, ये बटन ना तो किसी कमल के फूल का है, ना किसी हाथी का, ना सीढ़ी का, ना तीर कमान का, ना किसी हाथ पंजे का, ना ही झाड़ू का। ये बटन आपके बच्चों के फ्यूचर का बटन है। अच्छा बटन दबाओगे, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, चमक जाएगा। अगर पहले की तरह कोई गलती कर लोगे तो फिर वही पछतावा जो है वो मन में रह जाएगा। हाँ, इतना मैं कहता हूं, ये रोकते हैं हमें कि ये इनकी सभा नहीं होने देनी, इनको मैरिज पैलेस नहीं बुक करने देना, इनको हॉल नहीं बुक करने देना। ये दरिया जो है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरियाओं को रोका नहीं जा सकता। और वैसे भी बड़े बड़े पोस्टर लगाकर या ऐड देकर नहीं, मतलब लोगों के दिलों में बसा जा सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। आज के लिए मेरी इतनी हाजिरी कबूल करना, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भारत माता की इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। મજા આવી બધાને? बराबर फ्रेश થઈ गया? जैसे भगवंत मान जी ने बताया, मीडिया दिखाए न दिखाए, हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है। ये संदेश आपकी ओर से 100 लोगों को आपको भेजना पड़ेगा। भेजोगे या नहीं? आप सबको फेसबुक लाइव रहना है। आपकी ओर से 100 500 लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए। પંજાબમાં 6 મહિના પણ નથી થયા અને કોન્ટ્રાક્ટવાળા કર્મચારીઓ રેગ્યુલરાઇઝ થઈ ગયા અને એમણે ચેલેન્જ આપી કે એક પણ વ્યક્તિ એમ કહી દે કે અમારી પાસેથી પૈસા લેવામાં આવ્યા છે તો હું આ છોડી દઈશ। આ દેશમાં આપણા ગીતાજી, ભગવાન કૃષ્ણએ શાનદાર ગ્રંથ આપ્યો ગીતા। ગીતાજી શું કહે છે? કર્મ કર, હરામનું નહીં લે। ભ્રષ્ટ નેતાઓ ગીતાનો દુરુપયોગ કરે છે। ધર્મની દુહાઈ આપનારા લોકો ગાય માતાઓ માટે આજે આંદોલન કરવા પડે છે। ડિગ્રીઓ બેકાર જાય છે,
ગાંધીજીએ વેલ્યુ બેઝડ એજ્યુકેશન આપ્યું હતું, એના બદલે આજે ડિગ્રીઓ જાય છે અને ઘરમાં પીવાનું પાણી નથી આપતા, એ ગંગાના નામે વોટ માંગે છે। गंगा, गीता, गाय और गांधी का जितना मिसयूज ये भ्रष्ट नेताओं ने किया है, उसमें लोगों की आस्था पुनर्स्थापित करने के लिए आज हमारे बीच में भगवंत मान जी पधारे, उनका खूब खूब धन्यवाद। मैं विनंती करूंगा आदरणीय गोपाल जी से, हमारे आज के जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी आए हैं, रोजमदार छे, अंशकालीन छे, करार आधारित नौकरियों छे, सर ऐसे 7 लाख कर्मचारी हैं गुजरात में, जिनका रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उनके कुछ प्रश्न हैं जो गोपाल जी के माध्यम से आपको पहुंचाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोपाल इटालिया जी को, प्लीज आप આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તમામ કોન્ટ્રાક્ટ આઉટસોર્સિંગ અને રોજમદાર કર્મચારીઓનું સ્વાગત છે। તમારા બધાના પ્રશ્નો અહીંયા મળ્યા છે, પરંતુ જે પ્રશ્નો એક સરખા પ્રકારના હોય એને શોર્ટલિસ્ટ કરેલા છે। હું સૌથી પહેલા વિનંતી કરીશ ડોક્ટર કિરણબેન શેલડિયા અમરેલીથી પધાર્યા છે, જેઓ નેશનલ હેલ્થ મિશન આરોગ્ય વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે। ડોક્ટર કિરણબેન છે હાજર? હા, આપો માઇક દો। હિન્દીમાં અને શોર્ટમાં બ્રીફમાં બોલજો। हाँ बोलो बोलो, स्टार्ट करो जल्दी। वंदे ओके। आयुषेमो तरीके एनएचएम कैडर वती हूँ आज हिंदी में बोलજો। आयुषेमो की तरफ एनएचएम के स्टाफ की तरफ से मैं आपको हिंदी में हमारा जो प्रश्न है वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारा एक मुख्य मुद्दा है समान काम समान वेतन, और दूसरा है कि हम 2006 से इस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, 16 साल से हम काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसमें क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के सभी कर्मचारी आ रहे हैं। आरोग्य विभाग के सभी अलग अलग कामगिरी के लोग इसमें शामिल है, जैसे आयुष एमओ है, आरबीएस के एमओ है, और टीबी लेप्रोसी विभाग के स्टाफ है, ऑपरेटर है, वो ग्राम्य कक्षा से लेकर शहर और जिला और राज्य तक काम कर रहे हैं। इतने 25,000 कर्मचारी है जो कॉन्ट्रैक्ट पे एनएचएम में 2006 से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ये आशा लेके आपके पास आए हैं कि अगर आपकी सरकार आए तो हमें रेगुलर करेंगे या नहीं, हमारा ये प्रश्न है। थैंक थैंक यू। આગળનો સવાલ છે વિલાસભાઈ ચૌહાણ અમરાઈવાડીથી આવ્યા છે। ટૂંકમાં પોતાની વાત રાખશો, ટૂંકમાં એટલે વધુ લોકોને। વિલાસભાઈ ચૌહાણ છે, એમના પછી છે ગામિત દિવ્યેશ કુમાર તાપી જિલ્લાથી। ગામિત દિવ્યેશ કુમાર, માઇક આપજો। હાથ ઊંચો કરો એટલે દેખાય ક્યાંક। मेरा नाम है गामित दिव्येश कुमार, मैं तापी जिला और व्यारा तालुके से आया हूं, एक मनरेगा कर्मचारी हूं। और मेरे यहाँ साथी मित्र है जो 10 से 12 साल से मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो हमको अच्छी तरह से समान वेतन और समान काम के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है। और तीन हफ्ते हो चुके हैं हमारा, और हम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है। आउटसोर्सिंग में हमारा एजेंसी जो इथोस है एजेंसी, उसमें से 12,000 का सैलरी है, वो भी कट के 5,000 कट जाता है, 7,000 सैलरी हमारे खाते में आती है। जो आपकी सरकार आएगी तो क्या हमें जो आगे के पहले के जो कर्मचारी है उसको समान काम समान वेतन की अपेक्षा रखते हैं और रेगुलर हमें करे, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू। रावत भावेश कुमार है चांदखेड़ा अमदावाद थी। भावेश कुमार रावत छे। परमार वनिताबेन बापूनगर थी। सोलंकी प्रकाश भाई वडोदरा थी। आपो आपो जल्दी माइक आपो।
बोलो बोलो। मेरा नाम प्रकाश भाई पूनाभाई है। मैं लास्ट 25-30 साल से आयोसेल गुजरात रिफाइनरी में कैंटीन और माली और हाउस कीपिंग का काम कर रही है। तो इन लोगों का 1996 से गुजरात रिफाइनरी के अंदर चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल न्यू दिल्ली से उनका ऑर्डर हो चुका है। फिर भी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी वर्कर के तरफ ऑर्डर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी उसका ऑर्डर हो चुका है। फिर भी इन लोग इम्प्लीमेंट चालू नहीं करते और आयोसील मैनेजमेंट का पेट का पानी भी नहीं हिलता है। हम जब मिलने के लिए जाता है तो हमको आश्वासन ही देते हैं। इसके लिए हम केजरीवाल साहब से हमको मिलने के लिए हमारा ओके वाह, थैंक यू। मयंक भट्ट सर और हेमल साहब ने हमने जो आपको मिलने के लिए जो किया है उसके लिए हम धन्यवाद मानते हैं। जय हिंद। रमेश भाई सोढ़ा नडियाद थी। हेलो, हाँ बोलो। सचिन भाई पटेल वलसाड थी। सचिन पटेल। वाघेला शैलेश सरसपुर। बोल। हेलो, नमस्कार सर। मैं सिंचाई डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग 10-12 साल से आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। अभी जैसे सबका प्रॉब्लम है वैसे हमारा भी है। हमका भी वेतन जो 7-8 हजार के आसपास जो मिल रहा है वही मिल रहा है। अभी क्या है कि सब लोग का कामगिरी देखा जाए तो हम लोग का कामगिरी तो जंगल में ज्यादा रहता है, मशीन पे रहने का, जंगल के अंदर वो क्या बोलते हैं कि जंगल कटिंग का काम रहता है, नहर साफ करना रहता है, ऐसा मतलब जोखिम वाला काम रहता है हमारा। लेकिन कहने की बात यह है कि हम लोग को जो काम की प्रॉब्लम नहीं है, काम तो सब हम कर लेंगे क्योंकि काम करेंगे तो कुछ घर चलाएंगे ना, वो भी सही बात है। लेकिन जो वेतन मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा, हमको दिक्कत उससे है। तो आप जैसे सरकार आएगी, अगर इससे ज्यादा हमको अच्छा वेतन भी मिलेगा, अच्छा हम काम कर पाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि अब कुछ अलग होना चाहिए। 108 कर्मचारी યુનિયન વતી ભરતસિંહ ડાભી વડનગર થી આવ્યા છે। ભરતસિંહ। નમસ્કાર, હું ભરતસિંહ ડાભી ગુજરાત 108 કર્મચારી એસોસિએશન દ્વારા તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આમ આદમી પાર્ટીએ અમારો એક પ્રશ્ન રજૂ કરવા માટે અમને અહીંયા મોકો આપ્યો છે। गुजरात 108 कर्मचारी एसोसिएशन तरफથી છેલ્લા 15 વર્ષથી गुजरातમાં 108 एम्बुलेंस फ्री सर्विस में कार्यरत 108 के जो कर्मचारी है उनको 8 कलाक की ड्यूटी दी जाए और उसके सामने उनको समान काम और समान वेतन दिया जाए, उनकी सर्विस रेगुलराइज की जाए, जो कि कभी भी नौकरी पे रखे जाते हैं और कभी भी निकाले जाते हैं। गुजरात सरकार और जीवीके EMRI द्वारा कर्मचारियों को से 12,000 और 15,000 का उनसे वो लिया जाता है, बॉन्ड लिया जाता है और उसके सामने पैसे लेकर उनको नौकरी से बाद में निकाल दिया जाता है। ये प्रथा बंद की जाए, बस यही हम आम आदमी पार्टी से इच्छा रखते हैं। थैंक यू। तक्षेश कुमार मंडली जेवो वास्मोना कर्मचारीओ वती आव्या छे, पाणीवीर तक्षेश कुमार। तक्षेश कुमार छे? आपो आपो। क्या छे? हेलो। हाँ सर, मैं वास्मो कर्मचारी टीम की ओर से बोल रहा हूँ। वास्मो जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की ओर से शुरू किया हुआ विभाग है, उन्होंने जो काम शुरुआत की थी वो 2002 से है। हम सब 2002 से अभी 20 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो लाभ है वो हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो 2002 से सर्विस रूल्स भी किया हुआ है उसमें पीएफ ग्रेजुटी आदि, वो पीएफ ग्रेजुटी आदि का भी जिक्र किया हुआ है, फिर भी हमको वो भी लाभ नहीं मिल रहा है। हमको जो काम कर रहे हैं नल से जल, अभी लास्ट में तो पूरा स्टेट को 100% करना चाहते हैं सरकार, तो हम उसके लिए भी काम किया है, मगर हमारा जो काम है हमको जो लाभ देना है उसमें हमको लाभ नहीं मिला है। और लाभ के लिए हमने हमारे डिपार्टमेंट को बार बार विनती भी की है, फिर भी
लाभ नहीं दिया है, तो हमने नामदार गुजरात हाई कोर्ट से भी अपील की है, तो ऐसा भी कर रहे हैं, फिर भी हमको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमको लाभ मिले ऐसी आशा है आपसे। થેન્ક યુ। તો બધા જ વિભાગના પ્રશ્નો લગભગ એક સમાન છે। જેમનો ચાન્સ નથી મળ્યો, ડ્રાઈવર એસોસિએશન છે, સંયુક્ત ખેતી, એસએસએ, સમગ્ર શિક્ષા, કેજીબીવી, આ સિવાય જે કંઈ પણ ટીઆરબી સાથી મિત્રો, અલગ અલગ વિભાગમાંથી જે કંઈ સાથી મિત્રો પધાર્યા છે, બધાનો પ્રશ્ન માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી સુધી પહોંચ્યો છે। હું વિનંતી કરીશ આગળનો દોર રજૂ કરે। માઇક દીજીએ, માઇક આપજો। हेलो सर, नमस्कार। मैं सचिन पटेल बोलता हूँ। मैं बलसाड़ से आया हूँ। मेरा 8,000 सैलरी में मैं ड्राइवर का भी नौकरी करता हूँ, कंप्यूटर का करता हूँ। 8,000 पगार पे 17,000 पगार देता है सरकार, और मेरे को 8,000 मिलता है। भले मेरी नौकरी आज चली जाएगी, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन सबका दिल मेरा आई कार्ड में 2-2 पोस्ट है। आप देख सकते हो। मैं प्यून का काम करता हूँ, आईएससी गाड़ी चलाता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर का करता हूँ, फिर भी 17,000 सरकार सैलरी देती है हमारी पंचायत ऑफिस को, और हमारी एजेंसी हमको 8,000 देती है। सर 8,000 में क्या मिलेगा? आज मैं कल 12 बजे से बलसाड़ से निकला हूँ, महाराष्ट्र बॉर्डर से। आज 1 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ आपसे मिलने के लिए, सर सिर्फ आपसे मिलने के लिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए कुछ देखिए सर। आपके पास आने के लिए जो गोपाल सर जी ने हमको बोला कि ये धमकी है, ये है, वो, हम बिना डरे, मैं बोला जो होने वाला होगा। वैसे भी कौन देती है 8,000 में, कौन क्या करती है अपनी? उससे अच्छा अरविंद जी से मिलते हैं और बातचीत करते हैं अपन। रिक्वेस्ट है मेरी सर आपसे। नमस्ते। થેન્ક યુ। એક એક આંસુઓ આપણે યાદ રાખવાનું છે। આપણા એક એક આંસુ देश में एकमात्र आशा की किरण, एक उम्मीद આપણને કોઈના પણ માટે અગર છે હવે એકમાત્ર રાજનેતા જેણે સત્તાલક્ષી નહીં પણ સેવાલક્ષી રાજકારણ માટે ભેખ લીધો છે, એવા આદરણીય અને આખા દેશ માટે આશાનું કિરણ એવા શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરું છું કે આ લોકોનો ભરોસો, આ લોકોનો વિશ્વાસને ગુજરાતની અસ્મિતા બચાવવા માટે આપ આવો શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे। मंच पे बैठे हुए मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी, गुजरात के प्रभारी गुलाब जी, इंद्रानिल भाई, अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण और गुजरात के अलग अलग विभागों से, गुजरात के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल और अन्य किस्म के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को मेरा सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में अभी मैं 5 मिनट में बात करूंगा। उसके पहले मैं रोज सोशल मीडिया में पढ़ता हूं कि ऐसे लगता है जैसे सारे विभागों के सारे कर्मचारी इस टाइम गुजरात में हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक्स आर्मी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जीआईएसएफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिड डे मील वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गौशाला वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी महीना 1.5 महीना पहले मैं जब आया था, कई सारे पुलिस कर्मचारी मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी हमें बहुत सबसे कम तनख्वाह गुजरात के
पूरे देश में गुजरात के पुलिस वालों को सबसे कम तनख्वाह मिलती है। उन्होंने कहा हमारी मांग है कि हमें ग्रेड पे मिलना चाहिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम ग्रेड पे देंगे। जैसे ही मैंने ऐसा बोला, उनके गुजरात पुलिस के सारे कर्मचारियों ने अपने व्हाट्सएप के डीपी में मेरी फोटो लगा ली और गुजरात सरकार में हड़कंप मच गया। 2 घंटे के अंदर सारी गुजरात सरकार के अंदर ये क्या हो गया, बगावत हो गई। और अगले दिन गुजरात सरकार ने ऐलान किया कि उन लोगों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। उनकी डिमांड भत्ते की नहीं थी, उनकी डिमांड ग्रेड पे की थी, पक्का होने की थी। तो मैंने उनको बोला चिंता मत करो, भत्ते ले लो, इनसे जो बढ़ा रहे हैं वो ले लो इनसे जाते जाते। दिसंबर में जब हमारी सरकार बनेगी, भत्ते इनसे ले लो, दिसंबर में ग्रेड पे मेरे से ले लेना, मैं आपको ग्रेड पे दे दूंगा। अब ये जो इतने सारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, अब मैंने सुना है कि 27 साल में इन सरकारों ने कभी आपको मिलने का टाइम नहीं दिया, कभी किसी को मिलने का टाइम नहीं दिया, कभी मुख्यमंत्री नहीं मिला, कभी कोई मंत्री नहीं मिला। मंत्री मुख्यमंत्री तो छोड़ो, इनके अफसर भी नहीं टाइम देते आप लोगों को मिलने का। अब मैं सोशल मीडिया में पढ़ता हूं ये बुला रहे हैं, आओ बैठ के बात करते हैं, आओ बैठ के। मैं पढ़ता हूं कहीं कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर का भत्ता बढ़ा दिया, 10,000 रुपए कर दिया, इसका भत्ता बढ़ा दिया, उसका भत्ता बढ़ा दिया। इनके भरोसे में मत आना, ये चुनाव है। इस बार आम आदमी पार्टी ने इनकी नाक में दम कर रखा है, इसलिए बुला रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए, यही लोग आपको डंडे मरवाएंगे, पुलिस में आपकी सबकी नौकरियां ले लेंगे ये लोग। इनके ऊपर भरोसा मत करना। अभी अगर ये बुलाते हैं, आपको कहते हैं जो देते हैं ले लेना, लेकिन इन पे भरोसा मत करना। इस बार सरकार बदलने के लिए काम करना। आजकल एक नारा चल रहा है गुजरात में, मैं देख रहा हूं गुजरात के लोग नारे बड़े अच्छे बनाते हैं। एक नारा चल रहा है, 1 कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा। 1 कटोरी 2 समोसा, इन पे भरोसा बिल्कुल मत करना, झूठे हैं ये लोग, इन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। अभी एक साथी ने आखिरी में बोला कि बड़ी हिम्मत करके आया हूं सर, अब मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे लगता है इस सभा के अंदर कई सीआईडी वाले घूम रहे होंगे, आप सबके वीडियो बना के लेके जाएंगे। पहली बात तो आप सब लोगों की हिम्मत को सलाम देता हूं मैं, जो आप लोग अपनी अपनी नौकरी दांव पे लगा के आए हो। और मैं आप लोगों को 28 सितंबर, आने वाली 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। आपने भी कोई कम हिम्मत नहीं की है, अपनी अपनी नौकरी को दांव पे लगा के आए हो। 5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई हैं, उन सब के हकों के लिए लड़ने के लिए आज आप आए हो, इतने जितने लोग बैठे हैं यहां पे। आज के इस संघर्ष की वजह से फायदा 5 लाख लोगों को होगा, लेकिन संघर्ष आप लोगों ने किया। लेकिन मैं आपको ये वादा देता हूं, ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। अब ये 2 महीने रह गए, इन 2 महीने में इन लोगों की सत्ता खत्म करिए। सब लोग, अब ये 5 लाख लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे। मीडिया वालों की बेचारों की मजबूरी है, ये हमें दिखा नहीं सकते, इनको डरा रखा है उन्होंने। लेकिन इन पे अपने को, इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना। सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, सोशल मीडिया के जरिए इस बार चुनाव लड़ेंगे। आप लोग एक एक आदमी पूरे लग जाओ आज से कि सोशल मीडिया के ऊपर सारे कर्मचारियों को, 5 लाख आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, सबको व्हाट्सएप कर दो कि एक एक वोट उनका भी और उनके घर वालों का भी और उनके रिश्तेदारों का भी झाड़ू के ऊपर पड़ना चाहिए। और मैं आपको 4 वादे करके जा रहा हूं आज।
और जो मैं कहता हूं मैं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। इसलिए केजरीवाल की गारंटी है और किसी की इस देश में हिम्मत नहीं है जो गारंटी दे दे। वो कहते हैं मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, फलाना ढिमका। केजरीवाल गारंटी देता है। केजरीवाल, ये लोग एक पूरे देश में आजकल माहौल बना हुआ है। धीरे 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 करके सारी सरकारें, केवल आम आदमी पार्टी को छोड़ के सारी सरकारें पूरे देश के अंदर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सारी सरकारें धीरे धीरे करके सरकारी नौकरियां खत्म करती जा रही हैं। ये मैं देख रहा हूं। टीचरों की नौकरी खत्म कर दी, इस कर्मचारी की नौकरी, ग्रुप सी खत्म कर दिया, ग्रुप डी खत्म कर दिया। ये सरकारी नौकरी क्यों करते हैं? कहते हैं इनको पक्का करने से ये काम नहीं करते। तो सबसे पहले तो आईएएस की नौकरी खत्म करनी चाहिए। सबसे ज्यादा पक्के तो वो लोग हैं, है कि नहीं है? कहते हैं ये कच्चे कर्मचारी जब तक रहते हैं तब तक काम करते हैं, पक्के होने के बाद ये काम नहीं करते। बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसे? दोस्तों, दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा क्रांति करी, शानदार स्कूल, शानदार। हमारे बच्चों के नतीजे 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के आ रहे हैं। हमारी सरकार बनने के पहले, 2015 के पहले, ये लोग गालियां देते थे टीचरों को, सरकारी स्कूलों के टीचरों को। कहते थे ये सरकारी स्कूलों के टीचर आती हैं, पेड़ों के नीचे बैठी रहती हैं, स्वेटर बुनती रहती हैं, काम नहीं करती हैं। ये काम नहीं करना चाहते सरकारी स्कूल के टीचर, काम चोर हैं, पता नहीं क्या क्या गालियां निकालते थे। इन्हीं सरकारी स्कूल के टीचरों ने ऐसी क्रांति करके दिखाई। पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नाम छाया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, ट्रंप साहब, उनकी वाइफ दिल्ली सरकार का स्कूल देखने के लिए जाती है। ये सारे पक्के टीचर हैं। इन पक्के टीचरों ने क्रांति करके दिखा दी। ये कहते थे टीचर काम नहीं करते, गालियां देते थे। हमने माहौल बदल दिया, लोगों को, टीचरों को लगने लगा कि अच्छी सरकार आई है, हमारे लिए काम कर रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर पहले ये गालियां देते थे, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर काम नहीं करते, नर्सें काम नहीं करती, काम चोर है, फलाना है, ढिमका है। इन्हीं सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने, नर्सों ने, स्टाफ ने, पैरामेडिक स्टाफ ने क्रांति करके दिखा दी दिल्ली के अंदर। यह कहना गलत है कि सरकारी कर्मचारी को पक्का करने के बाद वो काम नहीं करता। काम करता है अगर उसको इज्जत दी जाए, उसको पूरा वेतन दिया जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए, उसको सम्मान दिया जाए, वो काम करता है। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर किया। अब पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चालू कर दिया। आज हम यहां पे आए हैं, आपको कोरा वादा करने के लिए नहीं आए, झूठा वादा करने के लिए नहीं आए। जो जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सारे काम हम दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं, तब यहां पे वादा करके जा रहे हैं। पहली चीज, हमारी सरकार बनेगी, गुजरात के सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और जो पक्का करेंगे वो भी पक्के तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट में जाके स्टे ले आए। समझ रहे हो? कई पार्टियों का मैंने देखा है, दिखाने के लिए पक्का कर देते हैं, फिर कोर्ट में बात करके जज से स्टे भी करवा लेते हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मान साहब ने पंजाब में, इन्होंने अभी बताया 36,000 कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का करना है। अभी 8,000, 8,500 टीचरों को पक्का किया है, बाकियों को पक्का कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि सारा पूरा कानूनी सिस्टम सारा ठीक कर रहे हैं, ताकि पक्का जब करें तो कोई भी स्टे नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर कोर्ट से। तो पहली चीज, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। दूसरी चीज, इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम समान वेतन को लागू किया जाएगा। मैंने ये देखा है कि इसको लागू करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता, खर्चा बहुत कम है। नीयत खराब है इन लोगों की, नीयत खराब है, इनकी नीयत नहीं है।
हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपकी तकलीफ समझते हैं, आपको सम्मान देंगे, आपको पूरा वेतन देंगे। तीसरी चीज, जैसा अभी भगवंत मान जी ने कहा, पंजाब में इन्होंने शुरू कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाएगी। ठेकेदारी प्रथा बंद करके सीधी तनख्वाह, जब तक ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं होती, सीधी तनख्वाह आप लोगों के अकाउंट में दी जाएगी, ताकि ठेकेदार आपके पैसे बीच में ना खा सके। आपके लिए 20,000 भेज दिए सरकार आपके हाथ में, वो 5,000 रखता है, 15,000 खा जाता है। ये बंद किया जाएगा। सीधे आपके अकाउंट में तनख्वाह दी जाएगी, ठेकेदार को आपकी तनख्वाह नहीं दी जाएगी, ताकि वो आपके ये 4 चीजों की मैं गारंटी देके जा रहा हूं। जितने भी प्रश्न आए थे, मुझे लगता है कि इन 4 चीजों से आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। और जितनी नई नौकरियां निकलेंगी, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। हम ना पैसे खाते हैं, ना पैसे खाने देंगे। जैसे अभी मान साहब ने बताया, पंजाब के अंदर जितनी नौकरियां निकल रही हैं, अभी मैं गाड़ी में बैठा था इनके साथ, ये मेरे को एक कहानी सुना रहे थे। एक लड़का, उसके पिताजी उसको कनाडा भेजने के लिए, आईलेट्स के पेपर दिलवाने के बाद उसको कनाडा भेजने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। 35 लाख रुपए इकट्ठे करने थे। 25 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके थे। 10 लाख रुपए और इकट्ठे करने थे कि बेटा कनाडा जाएगा। बेटे ने आके कहा कि पिताजी पैसे इकट्ठे करना बंद कर दो। उन्होंने कहा क्यों? बोले पिताजी मुझे कनाडा नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो वो कहता है अब सरकार बदल गई पंजाब में, मैंने देखा अपने गांव में लड़कों को बिना पैसे दिए, बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिलनी चालू हो गई है। मैं पंजाब में ही नौकरी करूंगा, पंजाब में ही ट्राई करूंगा। जितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी, 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकालेंगे। जितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी, किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर एक भी पैसा नहीं चलेगा, एक भी सिफारिश नहीं चलेगी। सबको अधिकार होगा, मेरिट बेसिस के ऊपर आपको नौकरियां मिलेंगी। पंजाब में और दिल्ली में हमने बिजली के बिल 0 कर दिए। 0 मतलब 0, मतलब बिजली का बिल 0 आता है बिल, लेकिन 0 आता है। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारे मेरा विरोध करते हैं। ये सारी पार्टी वाले की, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सब लोग आरटीआई डालो अपने मुख्यमंत्री के यहां, गुजरात के मुख्यमंत्री के यहां। आरटीआई डाल के पूछो कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उससे पूछो कि कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उसे 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की आपके मुख्यमंत्री को। आपको मैं कहता हूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, तो इनको मिर्ची लगती है। अगर मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी है, तो जनता को 300 यूनिट तो दे दो। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए 300 यूनिट बिजली? तो बिजली फ्री देंगे। पंजाब में दे दी। पंजाब में मुझे बता रहे थे 45 लाख लोगों के 0 बिजली के बिल आए हैं। 51 लाख लोगों के, 51 लाख परिवारों के, 51 लाख परिवारों के बिजली के बिल पंजाब में 0 आए हैं। दिल्ली में 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल 0 आते हैं। गुजरात में भी करके दिखाएंगे। और ये करिश्मा है कि 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते, और 0 बिजली के बिल आते हैं। ये करिश्मा केवल मुझे आता है। 0 बिल और फ्री बिजली, 0 बिल और फ्री 24 घंटे बिजली। और ये मुझे ऊपर वाले से वरदान मिला हुआ है। इस पृथ्वी के ऊपर केवल केजरीवाल है जो ये चमत्कार कर सकता है। और कोई आके कहे कि 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, उसकी बात मत मानना। भगवान से ये वरदान केवल मुझे मिला हुआ है, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। 2 करोड़ लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपको अगर बुखार है, क्रोसिन चाहिए, फ्री।
डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हर इलाके में। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपकी दवाई फ्री, आपके टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री, सारी दवाइयां फ्री। आपको बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट है, वो भी सारा फ्री। आप बड़े सरकारी अस्पताल में जाओ, सारा इलाज फ्री है। अब पंजाब में भी लागू कर रहे हैं। पंजाब में मान साहब ने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। इन 100 मोहल्ला क्लिनिक अभी महीना भी नहीं हुआ खोले हुए, 2 लाख लोगों ने उसमें इलाज करवा लिया अभी तक, 2 लाख। और उनको सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, सारी दवाइयां फ्री। फ्री इलाज कराना पुण्य का काम है, फ्री की रेवड़ी नहीं है, पुण्य का काम है। हमारे हिंदू धर्म में भी कहते हैं किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो वो गरीबों के बच्चों को पढ़ाई कराता है, गरीबों का इलाज कराता है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं होती। गुजरात में भी आपके सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे। 20,000, मैंने पूरी प्लानिंग की है गुजरात की, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं। हर मोहल्ले के अंदर खोलने हैं, हर गांव के अंदर खोलने हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आपका और आपके पूरे परिवार का सारा इलाज मुफ्त कराएंगे और अच्छा इलाज कराएंगे। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। प्राइवेट स्कूलों ने जो गुंडागर्दी मचा रखी है इसको बंद करेंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाएंगे। प्राइवेट स्कूल गुंडागर्दी करते हैं, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, सबका ऑडिट करवाएंगे। दिल्ली के अंदर हमने जब ऑडिट करवाया, कई स्कूल ऐसे निकले जिन्होंने 50-50 करोड़ रुपए की एफडी करा रखी थी। उनसे हमने एफडी तुड़वा के बच्चों के पैसे वापस करवाए हम लोगों ने, आज तक कभी नहीं हुआ था। और हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए महीना देंगे। इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है इन भाजपा वालों को कि महिलाओं को पैसा क्यों दे रहे हो। कहते हैं महिलाओं को पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई, महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं ऐसी कई बच्चियों को जानता हूं, बेटियों को जानता हूं, जो गरीबी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। 12वीं के बाद पिताजी कहते हैं कॉलेज बहुत दूर है, बस का किराया नहीं है, आने जाने का किराया नहीं है, कॉलेज की फीस नहीं है। कितनी सारी बेटियों का पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इतनी महंगाई के अंदर कई महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, फ्रूट्स नहीं दे पाती, सब्जी ठीक से नहीं खिला पाती। 1,000 रुपया मिलेगा तो बच्चों को अच्छा खाना दे पाएंगे, गरीबी के अंदर दे नहीं पाती। कई बुजुर्ग महिलाओं को जानता हूं, बेटी घर में आती है, मां का मन करता है उसके हाथ पे 2 रुपए रख दूं, कुछ 100 रुपए रख दूं, 200 रुपए रख दूं। कभी पति की तरफ देखना पड़ता है, कभी बेटे की तरफ देखना पड़ता है। अब मां को किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो जाएगी और 1,000 रुपए जो आम आदमी पार्टी की सरकार देगी वो निकाल के लाएगी और बेटी के हाथ में रख देगी। तो महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। और ये सारे काम कहते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अभी आपका पैसा लूटा जा रहा है। इतना पैसा इन दोनों पार्टी के नेताओं ने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया। अगर इन नेताओं की सारी प्रॉपर्टी बेच दो ना, गुजरात के ऊपर का सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। इतना पैसा कमा रखा है इन्होंने। गुजरात का एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च होगा। इनके स्विस बैंकों में जो पैसा जाता है वो बंद करेंगे। एक एक नेता ने इतनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, इतने बिजनेस कर रखे हैं, ये लूट को बंद करेंगे। पैसे की कमी नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है, हमारे पास, हम ईमानदार लोग हैं, मेरी पार्टी में भी पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, भगवंत मान भी फक्कड़ है, हम सारे फक्कड़ लोग हैं। ये चुनाव आपने लड़ना है, आपको एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज से लग जाओ, घर घर जाके बोलना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बोलना पड़ेगा, और एक एक आदमी को 2 महीने चाहे छुट्टी लेके काम करना पड़े, आप लोगों को काम करना है। आने वाले चुनाव के अंदर जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने अपना भविष्य बदला, हम सब मिलके गुजरात का और गुजरात के लोगों का भविष्य बदलेंगे। भारत माता की। हमको जो मार्गदर्शन मिला आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम सब खड़े होकर एक साथ राष्ट्रगान करेंगे।
उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो राष्ट्रगान के लिए विनंती। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे